हर सोहीरा छाड़ के करे आन की आस ते नर दोजक जाहेंगे सत पाखे रमदास। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ये हो जन्मत मारे लिखे कह रमदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे। गुरु की प्यारी साध संगत जी, आओ सारी संगतां एक मन एक चित्त होके सतगुरु रविदास महाराज जी दी बाणी दे नाल प्रीतां पाइए, साझा पाइए, सतगुरां कोलों सोझियां मंगीए कि सच्चे पातशाह जी कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो एहो जन्म तुम्हारे लिखे कह रविदास आस लग जीव्यो चिर प्यो दर्शन देखे। सच्चे पातशाह जी साडा ये जन्म इस जन्म दे विच आप जी दे चरणां दे विच बीत जावे, क्योंकि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो असी जन्मां दे तक बिछड़े। सच्चे पातशाह जी पता नहीं किहड़ियां गलतियां करके किहड़े कारणा करके होर जोनां दे विच भटकदे रहे। इस बार मनुखी जन्म मिलिया है। सच्चे पातशाह जी आप जी की कृपा दे नाल हुण संगतां नूं अपने चरनां दे नाल अपनी बाणी दे नाल हमेशा हमेशा जोड़ के रखना। सत संगत जी सारी संगतां एक मन एक चित हो के अपनी रसां नूं पवित्र करिए जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम। बड़े भागे हो कि बिन भागा सत संग न लभै, बिन संगत मैल परिजै जियो। भागां वालियां नूं ये जो सत संगत है वो मिलती है, वो इंसान भागां वाले हुंदे ने जिहड़े सत्संग दे नाल जुड़दे ने। इस करके बिना भागां तो सत्संग भी कर्मां दे विच जीवन दे विच नहीं मिलदी। इस करके सत्संगियो अज कांछी टीवी दे चैनल के माध्यम राही सारी संगतां जुड़ बैठियां ने। असी धन्नवादी हाँ कांछी टीवी चैनल का भी जिहड़े दिन रात करके संगतां दीयां आवाज़ां और जो सेवा कर रहे हैं। सच्चे पातशाह जी बाणी नूं जाप करन लई विचारन लई हर एक तक पहुँचा रहे हैं। असी धन्नवादी हाँ, क्योंकि जदों तक असी कोई उपराला नहीं करते उदों तक सानू कोई मंजिल नहीं मिल सकती। क्योंकि मंजिल भी तद मिलती है जदों तक इंसान प्रोग्रेस करता है, अपने विचारां दे विच वाधा करता है,
ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟੀਏ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਨਾ ਜਾਣ ਦਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਾ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਵਧਾਈਏ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਨਾ ਜਾਣ ਦਈਏ। ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। जब हम होते तब तू नाही, 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 अब तू ही मैं नाही, अब तू ही मैं नाही। उपदेश करते हुए कि जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਹਉਮੈ ਪ੍ਰਬਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਚੁੱਪ 100 ਸੁੱਖ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੋੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੋ ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਮਾੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਏ, ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਬ ਲਕ ਨਦੀ ਨਾ ਸਮੁੰਦ ਸਮਾਵੈ, ਤਬ ਲਕ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਜੋ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਨਾਰੇ ਤੋੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤਉ ਹਰ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਕਰ ਲਈ, ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੰਘੀਏ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੰਘੀਏ, ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਬਣਾਈਏ। अब तू ही मैं नाई
जैसे लहर में उदय जल केवल जल मात्र। सतगुरु दास महाराज इस पंक्तियां दे विच उपदेश दिंदे ने कि जिवें समुंदर दे विच ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, उदों फिर वो पानी का रूप ही पानी बन जाता है। इस करके सत्संगियों जीव के मन विच हंकार रूपी तूफान आउंदा है। उस दे मन विच अनेकां प्रकार लहरां रूपी इच्छावां पैदा होंदियां हन, पर हंकार के समाप्त होने दे नाल जीव शांत हो जाता है अते प्रभु का सिमरन करके प्रभु का रूप हो जाता है। हंकार समाप्त होने के नाल उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए वही नहीं तैसा। इंसान कई तरह के भरम भुलेखिਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमात्मा है ही नहीं, पर बहुत सारे लोग आखते हैं परमात्मा है। हुण किहदी गल मनीए किहदी ना मनीए। इस करके सतगुरु रविदास महाराज जी बाणी दे विच फरमान करते हैं कि जैसा मानिए होए ना तैसा। कि संसार अपने भरम भुलेखिਆਂ विच पिया होया है। इस करके इंसान जो सोचता है उस तरीके दे नाल हुंदा नहीं है। इस करके सत्संगियों
जिन्ना भी समा कटिए मन नूं एकाग्रता दे विच लिया के दुविधा दे विच ना रखिए अपने आप को, क्योंकि उस मालिक दा चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी। क्यों? अगर जेकर जिन्हां महापुरुषां दीआं आपां बाणियां नूं आपां विचार रहे हां, उन्हां ने अपनी जिंदगी दे विच अपने शरीरां दे उत्ते इन्हां दे बाणियां नूं अपनी एक्सपैरीमेंट कीता। उस परमात्मा दे आप रूप होए, परमात्मा दे नाल एक मिक होए। इस करके सानू अपने भरम भुलेखिਆਂ नूं मनां दे विचों कट के एक सच दा मार्ग लभना चाहिदा है, तां जो सानू ज्ञान लैण वेले उन्हां औकड़ां दा सामना ना करना पवे जिहड़ा साडा जां साडे शरीर दा ओह औकड़ां जिहड़ियां एक अंग बन जाण। इस करके भरम जो है भरमां तो मुक्त हो के फिर सतगुरां दे विचारां दे नाल अपनी साझ पाया करिए, तां साडे जिहड़े विचार आ, साडी जिहड़ी सोच है वो होर साफ सुथरी हो सकती है जी। बिछड़ते दुखी पाया सो
दशरथ दुख पाया, सो गत पई बिमारी। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣੇ ਸੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮਿਥਿਲਾਪੁਰੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਰਾਜਾ ਜੀ दोपहर के टाइम सुते पए, सुपना आया है सुतिया कि जो नाल दे सूबे का जो राजा है उसने इन्हां दे राज दे उत्ते आके चढ़ाई कर दी और राजे को बंदी बना लिया गया और बंदी बना के उसनूं इस सूबे दे विचों निकलण वास्ते हुक्म दे दिता गया और हुक्म दे दिता गया जो इस पिंडां दे लोग ने इन्हां दे वो इस राजे की कोई भी मदद नहीं कर, जिहड़ा मदद करेगा उसनूं भी तसीहे दिते जाणगे। जिहड़ा इस राजे जनक दा निरादर करेगा उन्हां नूं दरबार दे विच निवाजिया जावेगा। हुण जिस राजे ने चढ़ाई करके इस राज के उत्ते अपना दबदबा बना लिया, हासिल कर लिया, हुण राजा जनक कहर की गर्मी दे विच तुरिया जा रहा है और कोई भी लोग उसकी मदद नहीं कर रहे। काफी अगे जाके खिचड़ी का लंगर लगा है जिथे बहुत सारे लोग उस खिचड़ी नूं पंगत दे विच लग के लै रहे सन। जदों राजे ने भी उत्थे जाके पत्तियां दे उत्ते खिचड़ी को पवाया और जदों उसनूं खाण लगा कि दो सांड पिड़दे पिड़दे आपस विच ही आए, वो राजे जनक दे विच आके बजे। जदों राजे जनक दे विच आके बजे तो वो जिहड़ी खिचड़ी पाई सी पत्तियां दे उत्ते वो डुल गए। बड़ा परेशान होया, प्यास लगी सी, भुख लगी सी, पर जिहड़ी खिचड़ी पत्तियां दे पवाई वो भी डिग पई। हाय हाय कर रहा है, जदों हाय हाय कर रहा सी तो उस वेले दी अख खुल गई। अख खुलण दे नाल देखिया उस ही सोने दी सेज, फुल्लां दी सेज जो बनाई सी उहदे ते लम्मा पिया सी। पर मन दे विच डर पैदा हो गया कि ये जो सुपना मैं देखा है ये जरूर मेरे लिए नुकसान दे, मेरा नुकसान जरूर करेगा।
अपने मंत्रियों नाल लैके उसे वेले उस जगह ते गया जिथों खिचड़ी ले और थले डुल गई। वो सारे एरिया में घूम के आया पर मन दे विच शांति ना आई। राजे जनक ने उन्हां विद्वानां नूं उन्होंने ज्ञानवाना सद लिया और पूछया उन्होंने कि जो मैनू सुपना आया है ये सच्चा है या ये संसार सच्चा है। पर राजे जनक दा वो जवाब ना दे सके। उन्हां दे विच एक ऐसा विज्ञानी सी जिन्हां दा पुत्र अष्टावक्र, जिसनूं पता लगा कि मेरे पिता जी नूं राजे जनक ने कैद कर लिया है, क्योंकि राजे जनक ने कहा जिन्ना चिर मेरे इस जवाब दा इस गल दा जवाब नहीं तुसी देंदे उदों तक तुसी इस दरबार दे विचों बाहर नहीं जा सकते। इस करके जदों उस अष्टावक्र नूं पता लगा कि मेरे पिता जी नूं भी राजे जनक ने कैद कर लिया है, उदों अष्टावक्र जी उत्थे राजे दे दरबार दे विच आए और अष्टावक्र ने राजे जनक नूं सवाल पूछया कि राजन किहड़ी गल दे उतों इन्हां दरबारियां नूं इन्हां ज्ञानवानां नूं तू दरबार दे विच कैद कर लिया है। ते राजे जनक ने कहा कि मेरा इको एक सवाल है, जिहड़ा इस सवाल का जवाब दे देगा उदों मैं सारिआं नूं आजाद कर देवांगा। राजे जनक नूं जो जो उन्हां दे सुपने दे विच बीतिया सी वो सारा ही सुना दिता कि तैनूं इस तरीके नाल सुपना आया है, दूसरे सूबे का जो राजा सी तेरे ते चढ़ाई करके आ गया, तेरा राज खो लिया, तैनूं धुप जाना पिया, तू भुखा सी ते थां थां ते घूम रहा सी। इस करके जदों अष्टावक्र ने सारी गल उसनूं सुनाई ते राजे जनक ने उस अष्टावक्र नूं पुछया कि वो सुपना सच सी जां ये संसार सच सी। ते उस राजे अष्टावक्र ने उस राजन जनक नूं कहा कि राजन ना तो वो सुपना सच्चा है ना ये संसार सच है, ये दोनों झूठ ने। पर सुपने का समा घट है, जो संसार का जो सुपना है ये कुछ ज्यादा समा ठहर जाता है। इस करके दोनों ही सुपने जिहड़े झूठे ने। इस करके सानू अकाल पुरख की बंदगी दे नाल हमेशा जुड़ना चाहिए है, तां जो साडा जिहड़ा जीवन है ये लोक सुखीए परलोक सहेले हो सके। सुपने पे आ बेकारी
किछि मारे मंज न आया। राज भुजंगी प्रसंग जैसे है, अब किछि मारे मंज न आया। अब किछि मारे मंज न आया। निक काट की जैसी फूल परे, अब कहती कहन न आया। अब कहती कहन न आया। अब कहती कहन न आया। जब हम होते तब तू नारी, जब हम होते तब तू नारी। अब तू ही मैं नाई, अब तू ही मैं नाई। अब तू ही मैं नाई। जब हम होते तब तू नाई, जब हम होते तब तू नाई। सतगुरु दास महाराज बण के विश्वास करते हैं, राज भयंग प्रसंग जैसे है, अब कुछ मर्म जुनाया। अनेक कटक जैसे फूल परे, अब कहते कहन न आया। जिस तरीके ना कहते ने, अग तो डरिया ते टहने तो भी डरदा है। जेकर घर दे विच रस्सी पई होवे ते इंसान उस रस्सी नूं भी हनेरे दे विच सप समझदा है, क्योंकि वो हनेरे दे भुलेखे दे विच उहदे मन दे अंदर ये डर है, पर असल विच वो सप हुंदा नहीं। इसे तरीके दे नाल, इसे तरह परम करके जीव नूं संसार विच सच नजर नहीं आउंदा, पर ये असत है। इसी तरह जीव परम करके सोने ते सोने ते बने गहणियां नूं पिन पिन करके मनदा है, पर यह गल कहण विच नहीं होती। असल विच सोने तो बने गहने सोना ही होंदे हन। इसी तरह जीव परम करके प्रभु तो बख रहिंदा है, परम दूर होते प्रभु विच ही अभेद हो जाता है। सारे वेद
अनेके स्वामी सब कट को गए सोई, कह रविदास हाथ पहने गए, सहजे हुए सो गए। जिस अकाल पुरख ने इस धरती नूं सजिया है, ये ब्रह्मांड नूं सजिया है, पहला एक से एक तो अनेक, अनेक तो फिर एक, सर्वे एक अनेक स्वामी सब कट हो गए सो। भरम दे दूर होण नाल परमात्मा तो अनेक रूप धारण करके सारे संसार विच व्यापक नजर आउंदा है ते सारे संसार दे सब जीवां दे अंदर बैठा सब प्रबंध चला रहा है। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमान करते हैं कि मैं मेरी दा भरम दूर होने दे नाल सुभावक ही परमात्मा हत्थां पैरां तो भी नेड़े महसूस होता है, सहजे ही उसकी प्राप्ति हो जाती है। सत्संग जी बाणी पढ़ते हैं, विचारा करते हैं, अनेक तरह दी गलतियां हो जांदियां ने, माफ कर देना। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।